So dear students, from lesson 1, India, size and location, you are writing a question from page number 4. What are the contributions of India to the world since ancient times? What did you write? India had contributed a lot in the exchange of ideas and commodities since ancient times. The ideas of Upanishads and Ramayana, the stories of Panchatantra, went to many parts of the world and were translated in different languages. The numerals and decimal systems of India reached many parts of the world. India was also very important in international trade. Spices, muslin, and other merchandise were exported from India to different parts of the world. Did you write this? Yes, ma'am. हाँ. Yes, ma'am. हाँ. अब पैराग्राफ चेंज करो. On the other hand, India was also influenced by Greek sculpture. And architectural styles of dome and minarets. From West Asia. Completed? Yes, ma'am. You read the answer? Read the whole answer? Ma'am, India has contributed a lot to the world in the exchange of ideas and commodities since ancient time. The ideas of Upanishad and Ramayana and the stories from Panchatantra went to different parts of abroad and were translated in different language. India's numerals and decimal system reaches many parts of the world. In trade also, India contributed a lot. Spices, muslin and other merchandise were exported. मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है? ट्रेड आइटम्स. Yes, ma'am. आगे पढ़ो. Were exported since ancient time. On the other hand, India also influenced by Greek sculpture and architecture styles of domes and mineral from West Minarets, Asia. Greek sculpture, SCULPTURE, Greek sculpture and architectural style, ARCHITECTURAL, architectural styles of dome and minarets. ये दिल्ली में, आगरा में ये सब बहुत दिखाई देता है, फतेहपुर सिकरी में, है ना. तो ये उस समय के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इंडिया में भी पहुंचे. कहाँ से पहुंचे? वेस्ट एशिया से और ग्रीक से. ठीक है. तो अब हम लोग ना, और इस सेकंड कॉलम में आ जाओ. सेकंड कॉलम, उसमें के कुछ क्वेश्चन है जो बॉक्स में, उसको हम लोग कर लेते हैं पहले. ठीक है. यहाँ देखो, the number of union territories along the western and the eastern coasts. Western coast में कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं? नाम बताओ. तुम चाहो तो यहीं पे पेंसिल से लिख लो या कॉपी में लिख लो, है ना. यूनियन टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. पहला आंसर क्या हो गया? यूनियन टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. बोलो आंसर बोलो. दादर नगर एंड हवेली. दादर नगर हवेली. पंजाब में नहीं, वेस्टर्न कोस्ट में. और वो लिख लो दमन एंड दीव. एक साथ लिखना, दमन एंड दीव.
अमृत गौतम आंसर रिपीट करो। कौन से 2 यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखे? मैम पंजाब। पंजाब कैसे हो जाएगा यूनियन टेरिटरीज? पंजाब तो स्टेट मैम है। सॉरी हम्म, मैम दादर एंड नागर हवेली, दादर एंड नगर हवेली ये वेस्टर्न कोस्ट मैम में है। लक्षद्वीप। हाँ, लक्षद्वीप भी ऐड करो। हाँ, और उसके पहले क्या बताए थे? दमन एंड दीव। गोवा दमन दीव है ना, तो गोवा तो स्टेट बन गया, तो दमन एंड दीव जो है वो बच गया यूनियन टेरिटरी में, दमन एंड मैम दीव। नगर हवेली। और दमन दीव, फिर से सुनो, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप। इतना हो गया? बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब दूसरा लिखो यहाँ से, यूनियन टेरिटरीज ऑन ईस्टर्न कोस्ट। अंडमान एंड Pondicherry. निकोबार आइलैंड। हाँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हाँ, एंड पौंडीचेरी। बस इतना ही है। ईस्टर्न कोस्ट में 2 ही लिखेंगे, Yes, ma'am. Pondicherry and Andaman Nicobar. See the next question. Area wise, which is the smallest and which is the largest state? Which is the smallest उत्तर state? प्रदेश। Goa. गोवा मैम। हाँ, Goa is the smallest. Goa is the smallest state and Uttar Pradesh is the largest state. No, no, no. Rajasthan. Rajasthan. Rajasthan is the largest. सब करेक्शन करो जो लोग गलत लिखे। राजस्थान is the largest and Goa is the smallest. हो गया? आगे बढ़ो। Next question. Which states, the states which do not have an international border or lie on the coast, ऐसे स्टेट का नाम लिखना है जो किसी दूसरे कंट्री के साथ भी नहीं लगा है और हरियाणा। नहीं नहीं, और उसका कोस्टल पार्ट भी नहीं है। हाँ, हरियाणा होगा, महाराष्ट्र नहीं मध्य होगा। प्रदेश। मैम झारखंड। झारखंड है बिहार में। नहीं, बिहार का तो नेपाल मैम के साथ मध्य border प्रदेश। है। मध्य प्रदेश। हाँ ठीक मैम है। मध्य प्रदेश। और एक और बोलो, छत्तीसगढ़ भी होगा। असम। छत्तीसगढ़। हाँ, असम नहीं होगा। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ भी नहीं टच करना चाहिए और सी के साथ भी नहीं, कोस्टल साइड भी नहीं होना चाहिए, समुद्र की तरफ भी नहीं होना चाहिए। तेलंगाना। हाँ, अभी के लिए तेलंगाना, वेरी गुड, है ना। तो तुम इसको तो देख सकते हो मैप में, ये देखो, यहाँ देख रहे हो ना। तो ये ऐसे स्टेट में ये हो गया, हरियाणा हो गया, दिख रहा है यहाँ हरियाणा। फिर आप बिहार उत्तर प्रदेश नहीं लिख सकते क्योंकि ये नेपाल के साथ लगा हुआ है। ये झारखंड, मध्य प्रदेश। झारखंड ठीक है, मध्य प्रदेश ठीक है, छत्तीसगढ़ है, और यहाँ से तेलंगाना है ना। यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये तेलंगाना हो गया। तेलंगाना। तो तेलंगाना में राजस्थान, गुजरात, पंजाब, किस चीज के? चाइना से जम्मू एंड कश्मीर। ये मैप देख लिए ना, तो इससे पता चलता है कि ये जो हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट जो है, तेलंगाना, ये ना ही इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ है और ना ही कोस्ट लाइन के साथ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो फिर, क्लासिफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट हैं? बोलते चलो। जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड मैम कश्मीर। वो तो यूनियन टेरिटरी ना हो गया। पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। हाँ ठीक है, वो यूनियन टेरिटरी हो गया तो कोई बात नहीं, उसके ब्रैकेट में लिख देंगे यूनियन टेरिटरी, लेकिन नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा बॉर्डर इंडिया का लगा हुआ है, कौन कौन से स्टेट का? चाइना के साथ, म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ। तो चलो यहाँ मैप में फिर से एक बार देखो कि चाइना के, ये पाकिस्तान के साथ है, यहाँ से देखो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। खाली कश्मीर लिखो अब, है ना, कश्मीर लिखो, कश्मीर, और ब्रैकेट में लिखना यूनियन टेरिटरी। चाइना के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर है, इसमें लिखो पूरा लद्दाख, है ना, लद्दाख,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मैम उत्तराखंड, फिर यहाँ सिक्किम है ना, और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इतने स्टेट्स का नाम लिखेंगे। म्यांमार, म्यांमार के साथ लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, 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 हाँ अरुणाचल भी लिखना, नागालैंड, हाँ, और मणिपुर, मिजोरम, हाँ इतना लिख लेना। नहीं त्रिपुरा छोड़ दो, ये बांग्लादेश के साथ है। अच्छा, बांग्लादेश के साथ क्या लिखेंगे, ये देखो, ये बांग्लादेश के साथ पहले तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का बहुत बड़ा बॉर्डर है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम भी, हाँ असम भी और मिजोरम त्रिपुरा भी, ये इसका भी बहुत बड़ा बॉर्डर है ना। तो ये हो गया सारे ऐसे स्टेट्स जिसके साथ हमारा बॉर्डर टच करता मैम है। नेपाल के साथ कौन कौन से है? नेपाल का यहाँ से शुरू करो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी आता है। असम। हाँ, असम नहीं आ रहा है, ये वेस्ट बंगाल है ना, इसका नॉर्दर्न पार्ट आ रहा है सिक्किम के साउथ में, तो वेस्ट बंगाल भी लिखोगे और सिक्किम भी लिखोगे। ठीक है, फिर से देखो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इतने सारे स्टेट हैं जो नेपाल के साथ हैं। तो सब हो गया, पाकिस्तान के साथ सारे स्टेट्स का बॉर्डर, जम्मू कश्मीर, ये चाइना के साथ, नेपाल और म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ। अगला देखें हम लोग, फिर क्या करना है। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? अर्पणा? हाँ चलो, फिर आगे हम लोग देखें कि आगे क्या करना है। इंडिया शेयर्स, ये देखो लास्ट पैराग्राफ, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड इन द नॉर्थ वेस्ट चाइना। चाइना का कौन सा रीजन है? तिब्बत रीजन। नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। मतलब ये सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ वेस्ट भी कह सकते हैं। चाइना, नेपाल, भूटान इंडिया से नॉर्थ की तरफ है। म्यांमार और बांग्लादेश इंडिया से ईस्ट की तरफ है। और साउथ की तरफ देखें तो दो आइलैंड कंट्रीज हैं। कौन कौन से हैं बताओ? श्रीलंका, मालदीव्स। श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं श्रीलंका एंड मालदीव्स। इसका कैपिटल बताओ तो, श्रीलंका का कैपिटल क्या है? कोलंबो। और मालदीव्स का कैपिटल? माले। माले। वेरी गुड, याद रखना, जिसको नहीं याद है वो लिख लो यहीं पे पेंसिल से। श्रीलंका is separated from India by a narrow channel of sea formed by the Park Strait. ये शुरू में हम तुमको लिखाए थे ना इसका डेफिनेशन पार्क स्ट्रेट का। तो अभी कौन बोलेगा बिना देखे हुए, व्हाट इज अ स्ट्रेट? बोलो। Narrow path. A narrow stretch of water which separates two big land masses. A narrow stretch of water which separates two big land masses. अब यहाँ दो बिग लैंड मासेस कौन है? एक उधर इंडिया है और इधर श्रीलंका है, और बीच में क्या है? पाक स्ट्रेट है। यहाँ पे क्या है? पाक स्ट्रेट। अच्छा, एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार यहीं पे है। देखो ये इंडिया का ये किनारा है, इसको क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार। While Maldive Islands are situated in the south of the Lakshadweep Islands. ये लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप के ठीक साउथ में क्या है? मालदीव्स है। दिख रहा है ना मैप में? तो ये भी कोरल डिपॉजिट से बना है। Lakshadweep is also formed of coral deposit and Maldives are also formed of coral deposits. Coral deposits. What are coral polyps? They are microscopic organisms which deposit solid in the, from their skeletons and also through their secretion of from the mouth.
ठीक है, अब यहाँ देखो सेकेंड कॉलम, India has had strong geographical and historical links with her neighbors. Look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stands apart from the rest of Asia. How India stands apart from rest of Asia. तो यहाँ पे ना एक और टर्म आता है जिसको क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना। तो ये देखो कि इंडिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। इंडिया इज ऑल्सो नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वाई? ये देखो, ये सेंटर में इंडिया हो गया और इंडिया के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये दोनों इंडिया के साथ अटैच्ड हैं ज्योग्राफिकली, ठीक है। और जैसे नेपाल, भूटान, ये सब अटैच्ड हैं। देखो, इंडिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं ये समझना है। तो इंडिया तो सेंटर में है और इसके पास जो वेस्ट में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और इधर नेपाल, भूटान, इसको मिला लो। चाइना को छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि वो हिमालय से सेपरेटेड है। और इधर से बांग्लादेश, ये इतने सारे कंट्रीज मिला के कैसा अपीयर होता है, एशिया के कॉन्टिनेंट में ये एक सेपरेट लैंड मास दिखाई देता है ड्यू टू ज्योग्राफिकल फीचर्स। ज्योग्राफिकल फीचर्स मतलब चाहे तो इधर माउंटेन से अलग है या फिर इधर ओशन से अलग है। तो ओशन और माउंटेन के लोकेशन को देखते हुए ये एक बड़ा सा रीजन दिखाई देता है जिसमें इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भी है। तो ये सबको मिला के एक सिंगल लैंडमास जैसा दिखाई देता है एशिया में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। मतलब कॉन्टिनेंट का, एशिया कॉन्टिनेंट का एक डिस्टिंक्ट पार्ट जिसको क्या कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इंडियन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इंडिया इसके सेंटर में है और इसमें से सबसे बड़ा इंडिया है, इसलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आज हो गई। और भी कुछ पूछो इस लेसन से। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन में जरा देखो, कोई क्वेश्चन जो कि समझना है यहाँ, बोलो कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन किया जाए। सुधांशु, मान्या, हाँ, सब जरा देखो तो सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ के देखो। मैम 4, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, the central location of India at the head of Indian Ocean is considered of great significance. Why? इसका आंसर हम पिछले क्लास में तुम लोग को भेज दिए थे और उसको फिर से देखो। The central location of India at the head of Indian Ocean is of great significance. How? है ना, या why? तो ये देखो, इस पैराग्राफ में इसका आंसर है कि इंडिया का सेंट्रल लोकेशन है। वर्ल्ड के मैप में देखोगे ना तो इंडिया कैसा दिखता है, एकदम सेंट्रली लोकेटेड दिखता है। इस मैप में देखो, हाँ, ये मैप देखो, वर्ल्ड के मैप में यहाँ पे देखो कि इंडिया यहाँ पे एकदम सेंट्रली लोकेटेड है। इंडिया इज लोकेटेड एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन। हेड ऑफ इंडियन ओशन मतलब इंडियन ओशन के नॉर्थ में इंडिया लोकेटेड है, ठीक है, और एशिया के साउथ में है ये। और इंडिया का ऐसा पेनिनसुलर शेप ऐसे है ना, बाहर की तरफ टेपरिंग किए हुए है, मतलब बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है। तो इस वजह से इंडिया को बहुत अच्छा सी रूट मिलता है। इंडिया इज इन द बेनिफिट ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट सी रूट अक्रॉस द इंडियन ओशन। दिस रूट इज नोन एज ट्रांस इंडियन ओशन सी रूट, ठीक है। इंडियन ओशन से एकदम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाने के लिए हमें बहुत सारा सी रूट अवेलेबल है। यहाँ देखो, इंडिया का ये वेस्ट कोस्ट हुआ, इधर मुंबई का साइड जो है ये कौन सा साइड हुआ, वेस्ट कोस्ट हुआ। तो वेस्ट कोस्ट से हम इधर रेड सी के साइड से मेडिटेरेनियन में जाते हैं। ऐसे एरो दिखाई दे रहा है ना, मेडिटेरेनियन में जाके उधर यूरोप की तरफ निकल जाते हैं। तो हम वेल कनेक्टेड हैं यूरोप से।
ठीक है। फिर हम यहाँ से वेल कनेक्टेड है इधर अफ्रीका से, ये सी रूट देख रहे हो, तो तुमको यही लिखना है कि फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वी आर वेल कनेक्टेड टू अफ्रीका, टू यूरोप, to European countries through the Suez Canal and also to the West Asian country. यहाँ वेस्ट एशिया से हम वेल कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये साउथ वेस्ट एशिया है ना, ये अरेबियन कंट्रीज ये सारे, तो वेस्ट एशिया से हम वेल कनेक्टेड हैं, यूरोप के साथ वेल कनेक्टेड हैं और इधर अफ्रीका के साथ वेल कनेक्टेड हैं। तुमको ये सब एग्जाम्पल देके आंसर लिखना है कि वेस्ट कोस्ट से हम किस तरफ वेल कनेक्टेड हैं। और अब दूसरा देखो, फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट वी आर, ये ईस्ट कोस्ट है ना, फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट वी आर वेल कनेक्टेड टू द ईस्टर्न एशिया एंड साउदर्न एशिया। साउथ एंड ईस्टर्न एशिया से हम वेल कनेक्टेड हैं। ईस्टर्न कोस्ट से हम चलेंगे तो पूरा इंडोनेशिया हम तुरंत हमारे कांटेक्ट में आ जाता है, फिर इधर से साउथ चाइना, इधर से पूरे ईस्टर्न एशियन कंट्रीज, ये पूरे हमारे कांटेक्ट में हैं। सी रूट से ना हम वेल कनेक्टेड हैं साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से भी। और इतना ही नहीं, हम इधर साउथ की तरफ देखो, इधर जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे, तो हम ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच सकते हैं यहाँ से, इंडिया से, सी रूट से। तो तुमको इस आंसर में यही प्रूफ करना है कि हम वेस्ट कोस्ट से या ईस्ट कोस्ट की तरफ किधर भी जाएं तो हम दुनिया के हर एक हिस्से से वेल कनेक्टेड हैं। तो ये एग्जाम्पल दे दे के समझाना है, ठीक है ना। पिछले आंसर में हम लिखाए थे कि यहाँ से ये सी रूट जो चलता है, तो यहाँ देखो ये सुमात्रा आइलैंड है और ये मलेशिया है और दोनों के बीच में मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट है, इससे इंडिया वेल कनेक्टेड है, इधर ऑस्ट्रेलिया चला जाता है या इधर जाने के लिए, ईस्ट एशिया की तरफ जाने के लिए। समझ गए ना। तो इसमें तुमको क्या करना है इस आंसर में, कि तुमको ये बताना है कि इंडियन ओशन से हमें बहुत फायदा मिलता है। हम इंडियन ओशन को अपने ट्रेड रूट के लिए बहुत अच्छे से यूज करते हैं और इस पैराग्राफ में वही सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है। अभी जो तुमको हम बताएं मैप से, वो यहाँ पर वही सारा कुछ लिखा हुआ है। So how we are well connected to Africa, Europe, Western, from our western coast, फिर साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न एशिया, ये सबसे हम वेल कनेक्टेड हैं। यही सारा इसमें तुमको बताना है। तो इंडिया को इतना लंबा कोस्ट लाइन है, इतना लेंथ है कोस्ट लाइन का, देखो यहाँ लिखा है ना 7,516.6 किलोमीटर। तो ये इतना लंबा कोस्ट लाइन जो है, इसका इंडिया को बहुत बेनिफिट है और इंडियन ओशन का बेनिफिट है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स, ट्रांस किसको कहते हैं, मतलब अक्रॉस द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के एकदम वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम किसी भी डायरेक्शन में सेलिंग कर सकते हैं, इसी को कहते हैं ट्रांस इंडियन ओशन रूट। इस पार से उस पार, मतलब अक्रॉस द इंडियन ओशन रूट। समझ में आया, बोलो। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो Yes, ये ना रटने का नहीं है, वो मैप में देख लो और तुम उसके रूट को देखते हुए बता सकते हो कि वेस्ट की तरफ चलेंगे तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट से वेल कनेक्टेड है, ईस्ट की तरफ जाएंगे तो कौन कौन से कंट्रीज और कॉन्टिनेंट की तरफ हम वेल कनेक्टेड हैं। मान्या, ये आंसर लिखी थी Yes, पहले लिखी थी तुम ये आंसर? यस मैम। हाँ, तो वेरी गुड, चलो बढ़िया। ये आंसर तो हम भेजे भी थे तुमको, उसमें स्नैप होमवर्क में भी भेजे थे। इंडिया इज, ये जो पैराग्राफ है ना, इसी में ये आंसर है। ये द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट and the countries of East Asia provide strategic central location of India। देखो strategic का क्या मीनिंग होता है, स्ट्रैटेजिक मतलब इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में, जैसे हम डिफेंस के पर्पज से हमारा कंट्री का लोकेशन बहुत अच्छा है, स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स मतलब ऐसे ओशन में टेपरिंग किए हुए है, बाहर की तरफ निकला इनटू द इंडियन ओशन, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe, Western coast, from the Western coast and the with Southeast and East Asia from the Eastern coast। यही सब एग्जाम्पल लिखना है तुम,
इंडिया का जो सेंट्रल लोकेशन है उसके इम्पोर्टेंस को बताने के लिए यही सब एग्जाम्पल देना। और पहले तो इंडिया का लोकेशन बता दोगे कि इंडिया इज लोकेटेड एट द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया एंड एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन which gives it a central location on the globe. ओके, तो आज के लिए इतना ही। और कुछ पूछना है तो बोलो। स्वेज कैनाल का आंसर लिखा हुआ है। ये सब हम तुमको भेज भी देते हैं Yes, रिकॉर्डिंग, ताकि बच्चे जो नई क्लास अटेंड करते हैं वो भी देख के पढ़ सकते हैं। नई क्लास में प्रेजेंट होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। मैम पोर्शन कब दीजिएगा? हाँ, पोर्शन ना यही रहेगा, लेसन 1 ही रहेगा, इसीलिए तुमको ये फिर से रिवाइज कराया जा